So, okay, students, we are discussing about the chapter SST Class 6, Lesson 2, Ocean and Continents. महासागर और महाद्वीप के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. क्वेश्चन 1 है what are oceans and continents? What are their names and their distribution? तो इसका आंसर है कि what are oceans and continent? महासागर और महाद्वीप क्या हैं, उनके नेम और किस प्रकार से उनका डिस्ट्रीब्यूशन है. आंसर है द अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू ओशन एंड कॉन्टिनेंट ऑफ विच ऑलमोस्ट 3/4 इज कवर्ड विथ वाटर एंड 1/4 विथ लैंड. यानी 97% वाटर है ओशन में, और दैट इज़ वाई अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट बिकॉज इट सिम्स लाइक ए ब्लू ओवर द स्काई. एंड द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशन. वाटर बॉडीज ओशन कहते हैं. दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ओशन है वो. एंड लेवल ऑफ वाटर रिमेन सेम एवरीवेयर बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड. सेकेंड, a large continuous expanse of land is called a continent. जमीन का जो विशाल फैला हुआ क्षेत्र वो कॉन्टिनेंट है. देर आर 5 मेजर ओशन ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द लार्जेस्ट to the smallest. We can say that Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, the Southern Ocean and Arctic Ocean. These are the name of oceans. And the Pacific Ocean is the largest and spread on about 30% area of the earth. Pacific Ocean में it is circular in shape, circular goal है. And the world's deepest part of the earth, Mariana Trench. मैरियाना ट्रेंच इम्पोर्टेंट है. मैरियाना ट्रेंच कहाँ है? लाइज अंडर द पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन में ही है. इट इज़ बाउंडेड बाय एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन वन साइड एंड नॉर्थ द साउथ अमेरिका ऑन द अदर साइड. 7वां पॉइंट है द अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट एंड एस शेप्ड. द इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट and only ocean named after a country, India या भारत. It is shaped almost like a triangular. इंडियन ओशन ट्रायंगुलर में है और एटलांटिक ओशन है वो एस शेप में है. एशिया, we were discussing about the continent in detail. सबसे पहले एशिया. It occupies about 1/3 of the earth and land area. पूरी पृथ्वी का 1/3 एशिया है. एंड इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाई द यूराल माउंटेन. यूरोप से यूराल माउंटेन से नहीं ये जुदा होता है. एशिया एंड यूरोप टुगेदर आर नोन एज द यूरेशिया. एशिया इज सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाई ओशंस, आर्कटिक, पैसिफिक एंड इंडियन. अफ्रीका, 3 इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड पासेस थ्रू इट. अफ्रीका से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ Capricorn. The prime meridian 2 passes through its landmass. Like Asia, it is bound on 3 sides by water bodies. The Suez Canal separated Asia and Africa today. Now North America. North America is bound by 3 oceans. The Arctic north में, the Atlantic east में, and the Pacific Ocean. While earlier the Panama Isthmus joined North and South America, today it separated them. South America, it too is surrounded by ocean on almost all sides. South America, for example, Pacific Ocean on the west side, Atlantic Ocean on the east side, and Southern Ocean in the south side. Antarctica. This continent lies to the extreme end of the southern hemisphere. The South Pole is almost at the center. Its another name are frozen continent or the white continent, as it is permanently covered with ice. So it is called the white ocean continent. Out of all the continents, here people do not live ऑन ए परमानेंट बेस. यहाँ लोग रहते नहीं हैं परमानेंटली.
because it is covered with ice every time. Australia, it is the smallest of the 7 continents. It is bound on all sides by seas and oceans, and thus also known as the island continent. Australia smallest है. Question 2. In what ways do ocean and continent impact life on earth, इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ? ये हमारे जीवन को किस प्रकार से इफ़ेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं? आंसर है ओशन एंड कॉन्टिनेंट इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ इन नंबर ऑफ वेज. इस प्रकार से है. दे प्ले ए वाइटल रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ. ओशन थ्रू currents transport heat from the equator to the poles, regulating our climate. 98% of the heat from sun rays are absorbed by the oceans. 98% जो हीट वेव्स होती हैं उनको ओशियन ही ऑब्जर्व करते हैं. दे हेल्प सेंड रेन टू द कॉन्टिनेंट. रेन बारिश होती है इससे. दे आर ए पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल विच sustain agriculture, life on earth, and replenishes the usable freshwater resources. Our ocean product over half the world's oxygen we breathe and captures an estimate of 40% of the CO2, carbon dioxide produced, which is why they are called planet's lungs. The ocean feed us. Examples: fishes. Its biodiversity provides one global community with animal protein. In many developed countries, seafood is the primary source of protein. Ocean provide jobs and livelihood also. From early times, people have used ocean and seas to migrate to another region, to trade in all kind of goods, and to conduct military campaign and exchanges ideas. Oceans have impact history also and culture. For example, seafarer discover the sea route to various continents, lead to colonization and imperialization, even to enslavement. However, ocean are not all a story of gains. Ocean give rise to violent events with extreme rainfall, tsunami वगैरह इससे आती, और strong winds such as cyclone, which causes widespread damage to man and material. Tsunami, a natural disaster, originate in the ocean, and the sea waves travel thousands of kilometers, submerge coastal areas, and causes loss of life and properties. Aquatic ecosystem fosters like ocean, continent to impact life on earth. Continent जो 7 है are home to various landforms, mountains, plains, plateaus, deserts. They support wide plant and animal life, giving rise to many interesting ecosystem in nature. The soil cover provides us various form of vegetation like forest, grassland of grazing, for grazing, agriculture, and human settlement. Continent along with ocean are a rich source of mineral, also essential for economic development. The land support all structures like building, roads, rail, that are essential for living and transport. Let's explore. ये क्वेश्चन और हैं इसके एक्स्ट्रा. तो क्वेश्चन 1 है, व्हाट आर द सर्कुलर लाइन इन इच मैप कॉल्ड? एंड डू यू नो व्हाट द लाइन रेटिंग आउट ऑफ द 2 पोल आर कॉल्ड? हिंट है आपको, यू स्टडीज देम इन द प्रीवियस चैप्टर, बट हियर दे आर प्रेजेंटेड डिफरेंटली. सर्कुलर लाइन्स हैं मैप के ऊपर, वो क्या कहलाती हैं? तो the circular line in each map are called parallel of latitude. Lines radiating from the 2 poles are called meridian of longitude. दूसरा क्वेश्चन, which
hemisphere holds more water? The southern hemisphere has more water than the north hemisphere. What do you think could be the approximate proportion of water to land in the northern hemisphere and in the southern hemisphere? Discuss in groups. Northern hemisphere answer इसका the proportion of water to land 40% land and 60% water. Southern hemisphere the proportion of water to land 20% and 80% water. Question 4. Are all the oceans connected with one another or are there separation between them? Yes, all the 5 oceans are interconnected. नीचे से interconnected है. Some are connected with the Atlantic Ocean, Arctic Ocean. Example, the narrow water body named Bering Strait connected the Pacific and the Arctic Ocean. Still, others are connected by the narrow gap between the land masses of South America and the Antarctica. Question 5. Locate the 5 oceans and in the table below mark the hemisphere or hemisphere to they belong to. Answer. Ocean and continent class 6 question and answer question 4. अच्छा ये question answer ये आ गया. Observe the below image and answer the following question. Counting the number of square, name the largest continent and the smallest. इनको काउंटिंग करते हुए स्क्वायर को और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है. एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. वी कैन सी थ्रू द स्क्वायर. काउंटिंग करेंगे स्क्वायर को तो पता चलेगा कि एशिया में कितने स्क्वायर हैं और ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं. ये सभी में हम काउंटिंग करके कर सकते हैं. विच वन इज लार्जर, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका. इनमें कौन सा बड़ा है. अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया. आंसर है सदर्न अमेरिका. साउथ अमेरिका इज लार्जर देन नॉर्थ अमेरिका क्योंकि अफ्रीका इज लार्जर देन नॉर्थ अमेरिका एंड अंटार्कटिका इज लार्जर देन ऑस्ट्रेलिया. राइट डाउन द लिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लॉन्गेस्ट. ओके, कॉन्टिनेंट का स्मॉलेस्ट से लॉन्गेस्ट की तरफ. हियर इज अ लिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट. ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले छोटा, उसके बाद अंटार्कटिका है, उसके बाद साउथ अमेरिका बड़ा है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद यूरोप और उसके बाद अफ्रीका और उसके बाद एशिया. थिंक अबाउट इट. इफ देर इज सच अबंडेंस ऑफ वाटर ऑन द प्लेनेट, why is there so much talk of water scarcity और water crisis? यदि इतना सारा पानी है अपने प्लेनेट पे तो पानी के लिए हाहाकार क्यों मचा है. दैट इज द एग्जैक्ट हिंदी इक्वेशन. द ओशन टुगेदर होल्ड 3/4 ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन अवर प्लेनेट बट द sea water is salty and unfit for consumption by most animal and humans. Fresh water 3% only available, fit for consumption. Continuity is only 1.2% and is available only in river and lake, जो नदियों में और झीलों में है. एंड द रेस्ट इज लोक अप इन ग्लेशियर, और जो बाकी बचा पानी है वो तो ग्लेशियर में जमा है आइस के रूप में. आइस कैप्स एंड बरीड डीप अंडर द ग्राउंड, और अंडरग्राउंड है ज़मीन के नीचे, जिनको हम कुएं वगैरह खोद के निकाल रहे हैं. क्वेश्चन 2. व्हाट वेज ऑफ वाटर सेविंग वाटर आर यू अवेयर ऑफ एंड विच वन हैव यू सीन प्रैक्टिस एट होम, एट योर स्कूल एंड इन योर विलेज, टाउन और सिटी. आप कैसे पानी को बचा सकते हैं घर पे, गांव में, शहर में, ये कहीं भी. वाटर बीइंग ए प्रेशियस गिफ्ट फॉर नेचर एंड एन एसेंशियल एंड स्केर्स रिसोर्सेज नीड टू बी यूज जुडिशियली. होम, सबसे पहले घर पे. टेक वाटर शॉवर एंड मोस्टली विथ बुकेट एंड मग. फिक्स लीक, जो भी अपनी टूटियाँ उसको फिक्स करे, पानी बिखेरे नहीं, बर्बाद नहीं हो. टर्न ऑफ टेप एंड ऑल्सो नॉट पुट द टेप फुल ऑन, कम कम चलाएं. टर्न ऑफ वाटर फॉर एग्जाम्पल नॉट लेट टेप वाइल रनिंग, ब्रशिंग टीथ और वाइल सेविंग. जो भी अपन डेली एक्टिविटीज़ की काम करते हैं तो उसमें चालू ही नहीं छोड़े, पानी को बंद कर दें. डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन विच रेन वाटर फ्रॉम टेरेस वेरेंडाज गोज इन अंडरग्राउंड पिट थ्रू सेपरेट पाइपिंग. यानी जो बारिश का पानी है उसको अंडरग्राउंड पहुंचाने की कोशिश करे या उसको हार्वेस्ट करे
स्कूल में क्या कर सकते हैं? टर्न ऑफ वाटर टैप आफ्टर यूज. यस. Encourage students to use refill water bottles and educated them to pour their leftover water in pots or play fields. Avoid flushing and toileting unnecessarily and dispose waste like tissues in dustbin rather than in the toilet. टाउन सिटी या शहर में हम गांव में कैसे बचा सकते हैं? हार्वेस्ट एंड रीयूज वाटर, एजुकेट एंड इंगेज कम्युनिटी टू हार्वेस्ट एंड स्टोर वाटर. Check for openings or leak in water distribution pipe, but irrigation practice like drip irrigation. बूंद बूंद सिंचाई उसको प्रोत्साहित किया जाए तो गांव में या फिर खेती वगैरह के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन 1. एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म. कॉन्टिनेंट, ओशन और आइलैंड. कॉन्टिनेंट क्या है? A large continuous expanse of land is called a continent. Yes, a large continuous expanse of land is called a continent. एग्जाम्पल है इसके एशिया, नॉर्थ अमेरिका. ये याद कर लें अच्छे से. ये डेफिनेशन है इनकी. ओशन क्या होते हैं? वास्ट वाटर बॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड ओशंस. एग्जाम्पल है इसका पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन. फिर आइलैंड. व्हाट इज आइलैंड? Some smaller place of land surrounded by water on all sides, छोटा क्षेत्र होता है ओशन के बजाय, are called islands. For example, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. तो ये डेफिनेशंस हैं. क्वेश्चन 4. सॉल्व द अक्रॉस. यस, ये अपना वो है क्रॉस वर्ड. तो पहला इसमें ऑप्शन है अबंडेंटली प्रोड्यूस्ड बाय द ओशन. पहला अबंडेंटली प्रोड्यूस्ड बाय द ओशन, इसका पहला है. इसका तो अक्रॉस है. अक्रॉस है तो ये होगा ऑक्सीजन. पहले का ऑप्शन ऑक्सीजन. लार्ज एक्सपेंस ऑफ लैंड मास 3 नंबर का है. तो 3 नंबर में लार्ज एक्सपेंस ऑफ लैंड मास, जमीन का बड़ा भाग कॉन्टिनेंट कहलाता है. 6 है लार्ज कॉन्टिनेंट ऑफ विच इंडिया इज ए पार्ट. सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है जिसका भारत भी एक भाग है वो यूरेशिया. यस, यूरोप और एशिया दे आर इंटरकनेक्टेड एंड सेपरेट बाय ए माउंटेन. तो इसको यूरेशिया बोलेंगे. यूरोप और एशिया को मिलके बनता है जो. मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन ऑफ द ओशियन. मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन ऑफ द ओशन. पोल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स ये प्लास्टिक है. 8. यस, प्लास्टिक. 10 पे है द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट. तो आपको पता है कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? अंटार्कटिक. आर्कटिक और अंटार्कटिक है तो इसमें अंटार्कटिका. ये डाउन. द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अर्थ. सबसे बड़ा जो पृथ्वी का भाग है वो कौन सा है? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द. यस, डाउन में देखते हैं हम. द लार्जेस्ट आइलैंड ऑन अर्थ. लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? 2 नंबर पे है. तो ये है ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा क्षेत्र. ए ह्यूज डिस्ट्रक्टिव वेव फ्रॉम द ओशन. ह्यूज डिस्ट्रक्टिव वेव कौन सी है? सुनामी. तो सुनामी टी से शुरू होता है. TSUNAMI. टी साइलेंट रहता है इसमें. फिर 5 का है द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. सबसे छोटा क्षेत्र. कॉन्टिनेंट महाद्वीप कौन सा है सबसे छोटा? तो ऑस्ट्रेलिया है. ये 5 पे ऑस्ट्रेलिया. उसके बाद लार्जेस्ट वाटर बॉडी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. पृथ्वी पे सबसे बड़ी वाटर बॉडी कौन सी है? तो ये है वाटर बॉडी 7. वाटर बॉडी पैसिफिक ओशन. हाँ, सबसे बड़ा महाद्वीप. लैंड मास बट नॉट ए कॉन्टिनेंट. एक ज़मीन का क्षेत्र है लेकिन महाद्वीप नहीं. सराउंडेड बाय सी एंड ओशन, उसको आइलैंड कहते हैं. ISLAND आइलैंड. ओके, these are the very important question and answer of this chapter from all chapter. So learn it and read it.